Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So, in a Good previous morning, ma'am. good morning. In a previous class, we have read about. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. We have read about the Battle of Plassey, and in this battle, we have seen that it was the major victory of company in India, and it was the first victory of India, victory of company in India. Now we are continuing with this lesson, same lesson, page number 14. We have to start here. After the defeat at Plassey, Sirajuddaula was assassinated and Mir Zafar made the Nawab. Now, as soon as the defeat was there of Sirajuddaula, why Sirajuddaula was defeated? Can anybody tell me why Sirajuddaula was defeated? In a previous class, we have read about it, na? Sirajuddaula was defeated in Battle of Plassey. What was the main reason? Yes, Harshit, what was the main reason? बता देंगे थोड़ी देर Priyanshi, who wants to speak out? Why Sirajuddaula was defeated in the Battle of Plassey? You have not read the lesson till where I had explained yesterday in a previous class. Hello, Zoya, Harshit, Arnav, Bhavya, Charul. Yes. अरे तेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती क्या? Hello, Zoya Qureshi. Mute yourself. Mute yourself, everyone. If you want to give the answer, then only you can unmute yourself. So why Sirajuddaula was defeated? Very bad. After my explanation, you all are not revising the lesson again. That shows. ओके मैम क्या ओके मैम? व्हाट आई एम टेलिंग बेटा? क्या मैं बोल रही हूँ? यस जानवी, क्या मैं बोल रही हूँ? कुछ समझ में आ रहा है आपको? मेरे पढ़ाने के बाद आप लेसन खुद से नहीं पढ़ के देखते हैं. दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू आंसर नाउ. Why Sirajuddaula was defeated in the Battle of Plassey? The simple question. Because of their commando. Because of their commander. Command. Because of its commander. Who was the commander? Yes, very good. Who has given this answer? Hitendra. Hitendra. Zafar. But Mir Zafar. who was the commander? Mir Zafar. So Mir Zafar did help Siraj in the battle. That is why Sirajuddaulah was defeated in this battle. And why Mir Zafar did not help Sirajuddaulah? Mir Zafar ने क्यों नहीं सिराजुद्दौला की हेल्प करी थी? Because he want to become king. He wanted to become the king. And who asked him to become the king? Who promised? Robert Sidley. Ma'am Clive. Robert Clive. Yes. This was the main reason that Robert Clive have supported Mir Zafar and promised Mir Zafar that after Sirajuddaulah, Mir Zafar will be made the Nawab of Bengal by the East India Company. That is why Mir Zafar did not have Sirajuddaulah. Though Mir Zafar was the commander of Sirajuddaulah, but he never fought the battle on behalf of सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं और इसीलिए सिराजुद्दौला हार गए. And the promise was that Mir Zafar will be made the Nawab after Sirajuddaulah defeat. And the same thing happened here. After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated. Sirajuddaulah को मार दिया गया. Assassinated means and Mir Zafar made the Nawab. And Mir Zafar was made the Nawab. Keep your audio off, beta. Everyone. Priyanshi.
सिराजुद्दौला was assassinated, सिराजुद्दौला को मार दिया गया and Mir Jafar was made the Nawab as promised by Robert Clive. Mir Jafar was now made the Nawab of Bengal after the defeat of Sirajuddaulah and after the defeat also he was assassinated. उसको मार भी दिया गया. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Now the company was still not did not wanted to take over the responsibility of the administration of Bengal. Bengal को एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे. And its prime objective was the expansion of trade. Now also the company's main objective, prime objective means main objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not taken over directly. अब they believed, company believed that if local rulers means the nawabs, the जो राजा थे यहाँ के, if they had these company officials to get the duty free trade over here in India, आराम से सारी privileges दे दी जाए, then these company officials were not willing to take the territories directly. Territories पे किसी तरीके का अपना power नहीं लेना चाहते थे, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे कंपनी वाले, just because they wanted to have a peaceful trade here in India. सिर्फ वो ट्रेड करना आए थे और वो ट्रेड करना ही चाहते थे. अगर राजा लोग यहाँ के जो लोकल नवाब लोकल राजा थे, अगर वो उनको प्रिविलेजेस ग्रांट करते हैं इजीली, अगर उनको वो सब चीज जैसा कंपनी चाहती है वैसा वो करते हैं, then the company thought that it was no need to take the territories पे अपना अधिकार करना उनका नहीं काम था. Soon the company discovered that this was the rather difficult task. Now for even the puppet nawabs were not always as helpful as company wanted to be. Now company discovered, company ने ये पता लगाया कि though they had made the puppet nawabs means उन नवाब को राजा बना दिया गया है उन पर्टिकुलर रीजन्स का जिसपे वो ट्रेड कर सकते हैं आराम से, but then also it was difficult, company was finding difficult to establish its trade over there because sometimes these puppet nawabs, कभी-कभी ये जो puppet nawabs थे जो कि कंपनी अपने हाथों में रख करके उन नवाब्स को जैसा वो कंपनी चाहती थी वैसा काम करवाती थी नवाब से, तो कभी-कभी नवाब लोग मना कर देते थे हेल्प करने के लिए कंपनी को. So even the puppet nawabs are not always as helpful as company wanted to be. उतना ज्यादा helpful नहीं रहते थे नवाब जितना की कंपनी चाहती थी. After all, they had to maintain the basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. क्यों वो हेल्प नहीं करते थे ज्यादातर कंपनी को, नवाब वगैरह रूलर्स वगैरह यहाँ के लोकल, बिकॉज उनको भी अपने लोगों के बीच में, यहाँ इंडियन लोगों के बीच में अपना रिस्पेक्ट कंटिन्यू रखना था. यस और नो? हेलो, अगर वो लोग कहती थी वैसा काम करिए, उनका रिस्पेक्ट नहीं रहेगा एक तरीके से अपनी प्रजा के लिए. सब्जेक्ट्स हियर मींस द पीपल ऑन विच दीज रूलर्स, दीज नवाब्स वर रूलिंग, जहाँ के ये रूलर्स थे तो वहाँ के जो लोग हैं वो अब ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उनको, अगर वो कंपनी के साथ मिलकर के जैसा कंपनी कहेगी वैसा ही वो काम करना शुरू कर देंगे, तो उतना रिस्पेक्ट नहीं. Excuse me, ma'am. Ma'am, what is Sirajuddaulah? सिराजुद्दौला बेटा ये ना he was of Bengal. Okay, ma'am. नवाब को मार दिया गया और उसकी जगह मीर जाफर को. इससे पहले हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा ना, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो बैटल हुआ था. Yes, ma'am. Just because you are not revising the lesson, beta. Okay. What could the company do now? What could the company do to have all the privileges from the puppet nawab? Puppet nawab से सारी privileges मिल जाए, आसानी से वो ट्रेड कर सके यहाँ भारत में, तो वो क्या करे ऐसा?
when मीर जफर protested, मीर जफर, अब जब मीर जफर को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब बना दिया तो थोड़ा टाइम तक तो उसने हेल्प करी कंपनी की, बट नाउ आप स्लोली मीर जफर ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग मीन्स उनके अगेंस्ट में बात करने लगा, कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने लगा. द कंपनी डिपोज्ड हिम. अब क्या, जब मीर जफर कंपनी के अगेंस्ट में बात करने लगा तो कंपनी ने अब उसको क्या करा, उसकी पोस्ट से हटा दिया. क्लियर, कंपनी ने ही रखा था उसको, सिराजुद्दौला के बाद कंपनी ने ही मीर जफर को नवाब बनाया था. अब जब मीर जफर ही उनकी बात नहीं मान रहा था तो कंपनी ने मीर जफर को भी गद्दी से हटा दिया. एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस. और मीर जफर की जगह किसको बैठा दिया गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पे किसको बैठा दिया, मीर जफर की मीर कासिम मीर कासिम. why कासिम को why Mir Qasim was made the Nawab of Bengal? Why? मैम क्योंकि मीर जफर उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था. Very good. Because now Mir Zafar was not following according to the wishes of the company. Company के wish के according काम नहीं कर रहा था. So when Mir Qasim complained, he in turn was defeated in the battle fought at Buxar. अब जब मीर कासिम ने भी मना कर दिया कंपनी की हेल्प करने के लिए तो अब उसको भी क्या करा, बैटल बक्सर में जो बैटल हुआ था, बैटल फॉट एट बक्सर, उसमें वहां पर मीर कासिम को भी डिफीट करके और बंगाल से निकाल दिया गया. किसको बंगाल से निकाल दिया गया, मीर मीर कासिम कासिम. मीर कासिम को. मीर कासिम. हाँ, मीर कासिम, बिकॉज मीर कासिम भी अब इनकी बात, कंपनी की बात नहीं मान रहा था. तो अब मीर कासिम के साथ कंपनी ने वापस से एक लड़ाई लड़ी, दैट इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ बक्सर. क्या कहा जाता है उसको, बैटल ऑफ बक्सर. एंड इट वाज फॉट इन 1764. सो मीर कासिम एंड कंपनी led the battle and in this battle मीर कासिम was defeated और उसको बंगाल से बाहर निकाल दिया गया. एंड मीर जफर was reinstalled और वापस से किसको वापस गद्दी दे दी गई, मीर जफर को. Are you able to जफर. are you able to follow? Hello. Yes, ma'am. So Bengal के now from the beginning you see who was the Bengal Nawab first of all. Who was the Nawab of Bengal? अलीवर्दी खान. सबसे पहले बंगाल का नवाब कौन था, अलीवर्दी खान. अलीवर्दी खान. आफ्टर अलीवर्दी खान डेथ, अलीवर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट करके उसको मार दिया गया. आफ्टर दैट किसको बैठाया गया, मीर जफर. मीर जफर को बैठाया गया. मीर जफर जब नहीं सुन रहा था बात कंपनी की तो कंपनी वालों ने फिर क्या करा, किसको बैठाया, बंगाल की गद्दी पे मीर कासिम को मीर कासिम. मीर कासिम Yes. Now Mir Qasim stood against the company. Then who was reinstalled? Reinstalled means वापस से. मीर जफर. मीर मीर जफर. तो मीर जफर was reinstalled. आ गया बात समझ में, एक के बाद एक. फिर मीर जफर Yes, ma'am. दिया गया वापस, मैम. गद्दी दे दी गई. The Nawab had to pay rupees 500,000 every month. हर साल नवाब को इतना पैसा कंपनी को देना पड़ता था. बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वर्क. अब इतना पैसा तो देते ही थी नवाब कंपनी को, बट द कंपनी ऑल्सो वांटेड मोर एंड मोर मनी फॉर द वॉर्स. अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कंपनी को और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी. एंड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड एंड इट्स एक्सपेंसेस. और जो यहाँ ट्रेड करती थी उसमें जितना भी खर्चा आता था कंपनी का, वो सब खर्चा भी वो चाहती थी कि ये नवाब खर्चा भरे उनका. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. नाउ व्हाट हैपेंड, इट वांटेड मोर टेरिटरीज. अब इसके लिए कंपनी ने क्या डिमांड करी, मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. ज्यादा से ज्यादा पैसा और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज. Company. बाय द टाइम मीर जफर डाइड, और जब मीर जफर की डेथ हो गई इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज. अब कंपनी का मूड क्या हो गया, चेंज हो गया.
Having failed to work with company puppet Nawabs, Clive declared we must indeed become Nawabs ourselves. अब क्या हुआ, कंपनी का मूड चेंज हो गया। पहले तो वो नवाब को गद्दी पे बैठाती थी बंगाल के लिए, अब जैसे ही मीर जफर की डेथ हो गई, कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव था कंपनी ऑफिशियल, उसने क्या बोला, अपने आप को नवाब घोषित कर दिया कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब। अब वो क्या कहते हैं, हम खुद नवाब बन करके अब बंगाल पे राज्य करेंगे। क्लियर दिस मच? हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहले वो बिल्कुल कंपनी नहीं चाह रही थी कि वो सच now company decided that they themselves will become the nawab, the puppet nawab, जो कठपुतली बन के काम सोच रहे थे कि करवा लेंगे नवाबों से, वो काम नहीं करते थे। क्लियर? इसीलिए कंपनी ने सोचा अब हम खुद नवाब बनेंगे। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। नाउ फाइनली क्या हुआ, इन 1765 मुगल एम्परर जो था उन्होंने कंपनी को क्या बना दिया, दीवान ऑफ द प्रोविंसेस। फाइनेंशियली अथॉरिटी दे दी गई बंगाल की कंपनी को। होप इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Diwani allowed. Now, what was the privileges company was getting from this Diwani? ये जो दीवान उनको प्रोविंसेस मिल गए थे, दीवान का जो अधिकार मिल गया था उनको, what was these privileges? The Diwani allowed company, yes, Ma'am, what is Diwan? वही तो मैं बोल रही हूँ। दीवान means right over the finance and resources of the बंगाल। बंगाल का जो रिसोर्सेज है, जो फाइनेंस है, वो सब का कंट्रोल अब कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया। क्लियर? नाउ द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द बंगाल। अब ये जो दीवानी मिल गई थी, इनको प्रिविलेजेस मिल गया था एक तरीके से मुगल एम्परर से, कि अब कंपनी को अधिकार दे दिया गया था टू हैव द कंट्रोल ओवर ऑल द रेवेन्यू रिसोर्सेज। जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज थे, टैक्सेस लगाए गए थे बंगाल पे या बंगाल की प्रजा पे, वो सब अब उनका कंट्रोल किसके लिए था, अब कंपनी के हाथ में आ गया था। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। जो कंपनी ने पहले जो प्रॉब्लम्स फेस की थी, उनका ये सोल्यूशन मिल गया था, क्योंकि अब यहाँ से रिसोर्सेज के थ्रू अब कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था फाइनेंशियली। दीवान मीन्स फाइनेंशियली उसको फायदा हो रहा था यहाँ पर। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब उनका ट्रेड भी क्या हो गया था, फैलने लगा था यहाँ पर इंडिया में, स्प्रेड होने लगा था इंडिया में। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ इट्स गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर purchased by the company from India in place of goods and silver. Gold and silver means कंपनी को यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर दे करके इंडिया का सामान खरीदना पड़ता था। क्लियर? दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि इस समय तक ब्रिटेन के पास कोई भी ऐसा गुड्स नहीं था, कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो कि वो यहाँ आकर भारत में बेच सके, बल्कि भारत से वो सामान लेकर जा रहे थे। दैट इज व्हाई दे हैड टू परचेज विद द गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर आ रहा है समझ में? This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of दीवानी। जैसे ही उनको दीवानी राइट्स मिल गए, फाइनेंशियल राइट्स मिल गए यहाँ बंगाल में, वैसे ही उन्होंने अपना ये जो गोल्ड और सिल्वर का जो फ्लो हो रहा था ब्रिटेन से, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर लाया जा रहा था, वो स्टॉप कर दिया कंपनी ने यहाँ लाना। Now revenues from India could finance company expenses. अब क्या यहाँ से जो भी उसको फाइनेंस की हेल्प मिल रही थी, टैक्सेस मिल रहे थे कंपनी को भारत से ही, उसी में उसका पूरा वो
यहाँ से उसी का पैसा, भारत का ही पैसा भारत की ही चीजों पे खरीदने में वो यूज कर रहे थे. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company port and offices at Calcutta. अब ये जो रेवेन्यूज इनको बंगाल से मिले, बंगाल से जो टैक्सेस और प्रिविलेजेस मिले, उससे वो क्या कर रहे थे, भारत में रह करके कॉटन और सिल्क परचेज करा उन्होंने, कंपनी की ट्रूप्स आर्मी मेंटेन करी खूब अच्छे से, वेल स्ट्रॉन्ग पावरफुल आर्मी बनाई उन्होंने, और खूब अच्छे पोर्ट और ऑफिसेज बनाए कंपनी ने अपने यहाँ पर. आई होप इट इज क्लियर दैट द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स. दीवानी राइट्स मीन्स फाइनेंशियल राइट्स मिल गए थे अब उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए और सब बंगाल पे. नाउ कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स. What did it mean to be Nawabs? Nawab का मतलब क्या हुआ? It meant of course that the company acquired more power and authority. अब यहाँ जब कंपनी ने अपने आप को नवाब्स, एज ब्रिटिशर से हम नवाब है, नवाब ऐसे बोलते हैं ना, तो कंपनी ने जब अपने आप को नवाब घोषित कर दिया यहाँ पर कि वी विल ourselves become the Nawab of here, the territories of Bengal and all, so that means they had got more power and authority here in India. ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका अब भारतवर्ष पे होने लगा. बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स. अब ये इतना ही नहीं और कुछ भी था. ईच कंपनी सर्वेंट बिगैन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. अब पूरी कंपनी ही नहीं, जो कंपनी के अलग अलग ऑफिशियल्स थे वो लोग भी सब यही सोच रहे थे कि हम लोग सब एक नवाब की जिंदगी जिए, लाइफ स्पेंड करें नवाब की तरह. नवाब मीन्स लाइक अ रूलर, रूलर ऑफ पर्टिकुलर टेरिटरी. क्लियर? सो एज सून कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स या नवाब बन गए, so that meant that they were becoming more powerful and authority, they were having more authority, and each of the company officials wanted to become the and live like a Nawab. Clear? Now after the battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money to as personal gifts to company officials. Ab after the battle of Plassey, what happened? The Nawabs actually who were the local Nawabs, भारत के जो लोकल नवाब्स थे, अब उनको क्या करना पड़ा? उनको बहुत सारा पैसा और अपनी लैंड एज अ गिफ्ट कंपनी ऑफिशियल्स को देनी पड़ जाती थी. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in India. Amassed a fortune in India means रॉबर्ट क्लाइव ने भी काफी कुछ अपना अच्छा फ्यूचर बनाया यहाँ भारत में रह करके. बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी कर ली अपने खुद के पर्सनल, अक्यूमुलेट कर लिया पर्सनल वेल्थ. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. 18 की एज में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आए थे. And then in 1767 he left India. और जब 1767 में वो भारत को छोड़कर जाने लगे, तब क्या हुआ? His Indian fortune was worth so much, means in billions. इतना बिलियन वो कमा करके वापस भारत से गए. 18 साल की उम्र में ये आए थे, और जब 67 में 1767 में, दैट मीन्स कितने साल तक, कितने साल तक हुआ बेटा? 1743 में आए थे और 1767 में गए. 33. 33 Ma'am, 33 years. हाँ, इतने सालों तक उन्होंने इतना ज्यादा वेल्थ इकट्ठी कर ली, और जब वापस वो इतनी वेल्थ लेकर गए इन डॉलर्स. इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, जब उनको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया इन 1764, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. उनको ये बोला गया कि वो कंपनी में जो करप्शन हो रहा है, करप्शन मीन्स धोखेबाजी जो कंपनी में हो रही है, उसको वो रिमूव करे. रॉबर्ट क्लाइव को ये एडवाइस दिया गया था. बट ही was himself cross examined in 1772 by the British Parliament. बट उसको खुद को क्या
क्रॉस एग्जामिन किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. किसको क्रॉस एग्जामिन किया गया? रॉबर्ट क्लाइव को, बिकॉज he himself was himself was involved in the corruption में वो खुद इन्वॉल्व था. समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव को ये ड्यूटी दी गई थी Yes, ma'am. एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी करप्शन हो रहा है उसको वो खत्म करे. बट जब उनको खुद को एग्जामिन किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो उनको भी सस्पेक्ट फॉर एक्यूमुलेटिंग द वास्ट वेल्थ, बहुत सारी वेल्थ अपने लिए इकट्ठी करने का उन पर भी इल्जाम लगाया गया. ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, दाओ उसको उनको फ्री कर दिया गया इस आर्ग्यूमेंट से, बट ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. बट उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने आप को मार दिया. क्लियर? जस्ट ही वाज सस्पेक्टेड एज अ करप्टिव रूलर. करप्शन में इन्वॉल्व करा मिल गए थे, इसीलिए वो इतना अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाए डिसरिस्पेक्ट, और उन्होंने सुसाइड कर लिया. Now, however, not all company officials succeeded in making money like Clive. सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने इतना पैसा नहीं बनाया जितना कि क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ भारत में रहकर का पैसा बनाया. Many died at early death in India due to disease and war, and it could not be right to regard all of them as corrupted and dishonest. सब कंपनी ऑफिशियल्स को हम करप्ट या डिसऑनेस्ट नहीं मानेंगे, बिकॉज कुछ रॉबर्ट क्लाइव जैसे सारे ही लकी नहीं थे जो कि इतनी वेल्थ वापस लेके जाने लगे, बट कुछ तो रास्ते में ही डेथ हो गई, किसी की कोई डिजीज से डेथ हो गई. सो वी कांट से दैट ऑल द कंपनी ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व इन द करप्शन और वर डिसऑनेस्ट. कंपनी से डिसऑनेस्ट थे, कंपनी को धोखा दे रहे थे, ऐसा हम सबके लिए नहीं कह सकते. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. से बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए थे, बैकग्राउंड, एंड देयर अपरमोस्ट डिजायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया. उनका मेन डिजायर क्या था? टू अर्न मोर इन इंडिया एंड रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. यहाँ से खूब धन इकट्ठा करना. कंपनी ऑफिशियल्स का मेन एम क्या था? यहाँ से खूब अच्छा धन इकट्ठा करके वापस ब्रिटेन लेकर जाना और वहां पर एक लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ लीड करना. यही कंपनी ऑफिशियल्स का मेन एम रह गया था. दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ, जो कि यहाँ से ले जाने में कामयाब हो गए, भारत को में से जो वेल्थ ले जाने में कामयाब हो गए ब्रिटेन, वो वहां पर ब्रिटेन में जाकर के बहुत अच्छी लाइफ जिंदगी जीने लग गए, बहुत ही लग्जरियस लाइफ. एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस. एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस मींस एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, जो यहाँ से वो वेल्थ ले गए थे वो खूब अच्छे से वो उसका यूटिलाइज करने लग गए. दे वर कॉल्ड नवाब्स. इन कंपनी ऑफिशियल्स को क्या बोलने लगे? नवाब्स. एंड एंजेलिस्टिक वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब. अब ये क्या है नवाब्स? एक तरीके से ये वर्जन है, एंजेलिसाइज्ड वर्जन ऑफ नवाब. नवाब वर्ड को यूज किया गया है एज अ नवाब्स. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in play and cartoons. कभी कभी उनका फन बनाया जाता है, इन कंपनी ऑफिशियल्स का फन बनाया जाता है. कोई भी प्ले या कोई कार्टून कैरेक्टर बताते हैं तो कंपनी ऑफिशियल्स को इस टाइप से नवाब्स के रूप में एक तरीके से उनका फन बनाया जाता है, उनका वी कैन से हंसी उड़ाई जाती है. क्लियर? क्योंकि वो मेन नवाब बनने नहीं आए थे, वो तो मेन उनका मेन क्या एम था? यहाँ से पैसा इकट्ठा करना और ब्रिटेन में जाकर के लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना. आई होप टिल इट इज क्लियर या? Yes, ma'am. Now company expense. अब कंपनी का रूल कैसे एक्सपेंड करता है? If we analyze the process of annexation of Indian states by East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects are emerged. जब हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी ने कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स को अपने अंदर
जीत करके मिला लिया था. द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक. कभी बहुत कम देखने को मिलता है कि कंपनी ने कोई डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया हो किसी टेरिटरी पे. Or an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. अब इसे इस पैराग्राफ में हमें ये देखने को मिलता है कि कंपनी ने कभी भी बहुत कम ऐसे सिचुएशंस हुई जब कंपनी ने डायरेक्ट अटैक करा पर्टिकुलर टेरिटरी पे और उसको अपने अंडर मिला लिया. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट डिड कंपनी डिड, due to political, economic and diplomatic methods, बहुत ही प्लानिंग वे से, बहुत सारी पॉलिसीज यूज करके, बहुत ही प्लान करके कंपनी ने अपने इंडियन की जो टेरिटरीज थे, इंडियन किंगडम्स जो थे, वो अपने किंगडम में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिए और उन पर अपना पावर जमा लिया. क्लियर? तो कभी भी कंपनी ने कोई ऐसा डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बट मोस्टली उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई यहाँ पर भारत में रह करके आकर के कि भारत के जो लोकल नवाब्स और रूलर्स थे वो ऑटोमेटिकली दे वर रेडी टू सरेंडर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. और किसी भी तरह वो अपनी उनकी जो किंगडम्स थे, लोकल नवाब्स और लोकल रूलर्स के किंगडम्स, ऑटोमेटिकली उनकी पॉलिसीज के अंडर कंपनी के अंडर में आ गए. क्लियर? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. अब कंपनी ने क्या करा, अपॉइंटमेंट देना शुरू करा. किसको? रेजिडेंट्स को. रेजिडेंट्स वर द पीपल अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन इंडियन स्टेट्स. इंडियन स्टेट्स की देखभाल करने के लिए कंपनी ने ऑफिशियल्स अपॉइंट करे जिनको रेजिडेंट्स बोला. दे वर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. अब इनका काम क्या था? इनका काम था कंपनी का बेनिफिट देखना. क्लियर? दे वर द एजेंट्स फॉर द कंपनी और उनका कंपनी का बेनिफिट देखना ही इनका काम था. थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स. अब रेजिडेंट्स के अपॉइंट कर दिया इंडियन स्टेट्स में. अब इनके थ्रू कंपनी ने क्या करा, इंडियन स्टेट्स में अपना इंटरफेयरिंग शुरू कर दिया पॉलिटिकल अफेयर्स में. They tried to decide who was to be the successor of the throne. अब कैसे इंटरफेरेंस शुरू कर दिया कि जिस टेरिटरी में राजा रूल नहीं करता था या उसकी डेथ हो जाती थी तो ये अपना इंटरफेरेंस करके बताते थे कि आप इसको राजा बनाओ, उसको नहीं बनाओ, इसको गद्दी दी जाए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाओ. तो इस टाइप का वो इंटरफेरेंस करने लगे इंडियन स्टेट्स में थ्रू द रेजिडेंट्स. They tried to decide who was to be the successor of the throne and who was to be appointed in the administrative post. किसको एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट दी जाए. Sometimes the company forced the states into the subsidiary alliance. कभी कभी उनको एक तरीके से अलायंस में सब्सिडियरी अलायंस मानना पड़ता था इंडियन स्टेट्स को. Now what was this subsidiary alliance? According to this subsidiary alliance, Indian rulers were not allowed to have independent armed forces. Underline this. Subsidiary alliance का मतलब होता था जो इंडियन रूलर्स होते थे उनको अपनी खुद की फोर्स रखने का अधिकार नहीं था. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces. अब जब कभी भी उन इंडियन रूलर्स को फोर्स की, आर्मी की, सोल्जर्स की जरूरत होती थी तो उनको किससे प्रोटेक्शन मांगना पड़ता था? कंपनी से. और इसके लिए जब वो फोर्स मांगते थे कंपनी से तो इसके लिए उनको पेमेंट देनी पड़ती थी कंपनी को. क्लियर? And was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, the part of the territory was taken away as penalty. अब जब कभी भी ये इंडियन रूलर्स ये पेमेंट देने के लिए फेल हो जाते थे, नहीं पेमेंट कर पाते थे कंपनी को, तो उनकी जो टेरिटरी होती थी इंडियन रूलर्स की वो कंपनी अपने अंडर में ले लेती थी. So this was the type of what? A planning, a type of क्या एक बना दिया गया था, एक समझौता बना दिया गया था कि अगर आप ये नहीं मानोगे तो आपकी हमारी टेरिटरी हमारे अंडर में आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव द हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1800